Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at some of the important pouches of the abdomen. And the pelvis region as well. So one of the important pouches are simply the folds of peritoneum between the two organs. इसमें एक hepatorenal pouch होता है जिसको हम Morrison's pouch भी कहते हैं, which is present as the name indicates behind the liver and the right kidney. क्योंकि liver की side पे right side structures ही होते हैं, so there will be right kidney in relation to the liver being separated by a pouch called as the Morrison's pouch. अच्छा, now this pouch is important because it basically acts as a bursa, just like the recesses, and it acts to give a bit space to the liver or to the kidney to expand in case of any region or any case of dilatation, right? अच्छा जी, अब हमें इस मॉरिसन्स पाउच या हेपेटोनियल पाउच की बाउंड्रीज बताना चाहिए कि एंटीरियरली इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स को बाउंड कर रहे होंगे. सो इट्स नॉट प्रेजेंट, लाइक जो लिवर है वो सुपीरियर और किडनी इन्फीरियर नहीं है. द लिवर इज लाइंग एंटीरियरली एंड द किडनी इज पोस्टीरियरली. तो जो इसकी बाउंड्रीज होते हैं वो भी इसी रिलेशन में बन रही होती हैं. लाइक जो इंटीरियर बाउंड्री होगी इस हेपेटोनियल या मॉरिसन्स पाउच की, वो बनेगी बाय द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर एंड द गॉल ब्लैडर. जिसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी वो बनेगी बाय द किडनी, लाइक राइट किडनी, राइट सुपररिनल ग्लैंड, द transverse colon, the transverse mesocolon, the right flexure of colon and the part of head of pancreas. इसकी posterior boundary बना देंगे. तो superior boundary will be formed by the superiorly ना just inferior layer of the coronary ligament, जो कि एक part है हमारे liver के ligaments का. liver के 3 important ligaments होते हैं, coronary ligament, falciform ligament and the triangular ligament. So उसमें से एक होता है coronary ligament. उसका जो inferior layer होती है वो बना रही होती है superior boundaries hepatorenal pouch की. जो इसकी inferior boundary वो ये है कि it's simply opening up into the general peritoneal cavity में ही open हो जाता है हमारे hepatorenal pouch inferiorly. And towards the left we'll be having the omental bursa, because we know that left to the liver we have the stomach and behind the stomach we have the omental bursa or the lesser sac. तो उसी में ये open हो जाता है on the left, and on the right it's bounded by the diaphragm, as you can see. तो ये होगी हमारी boundaries of the Morrison's pouch or the hepatorenal pouch. Anteriorly we have the liver and the gallbladder, posteriorly we have the right suprarenal gland, the right kidney, the transverse mesocolon, the right colic flexure, the बस. और हाँ, एक और चीज़, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम भी होता है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में, क्योंकि वो भी ऐसे आके ऐसे हो रहा होता है. एंड देयर विल बी अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास. और सुपीरियरली वी हैव द inferior coronary ligament and inferiorly we have communication with the general peritoneal cavity. अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा hepatorenal pouch या Morrison's pouch. The next pouch is a pouch of Douglas or the recto-uterine pouch, as the name indicates. It will be present between the rectum and the uterus in females, and it will be right like this. So इसकी हमें बाउंड्रीज करनी पड़ेंगी. तो anteriorly it will be bounded by the by peritoneum covering the posterior aspect of uterus, या फिर simply the uterus and the posterior fornix of vagina, as you can see. तो ये होगी इसकी anterior boundary. Posteriorly it will be bound by the rectum, and inferiorly या floor of this pouch will be formed by the rectovaginal fold of peritoneum. And just like we have the recto-uterine pouch, we also have a rectovaginal fold of peritoneum, जो कि इसका floor इसकी inferior boundary बना रहा हो. तो इसकी 3 boundaries होती हैं हमारे pouch of Douglas की या recto-uterine pouch की. Now we don't need to confuse it with the the pouch of the fold of Douglas. We also had a fold of Douglas. एक होता है pouch of Douglas, which is the recto-uterine pouch. एक होता है fold of Douglas, which was the linea semicircularis, जो कि लिमिट कर रहा था lower most boundary of the posterior lamina of the rectus sheath. तो हमने वो rectus sheath के पोर्शन में देखा था, वो तो था fold of Douglas. दिस इज़ अ pouch of Douglas. दोनों में हमने कंफ्यूज नहीं करना. वो एक आर्कुट लाइन थी, हम आर्कुट लाइन को ही fold of Douglas भी कह रहे थे, ये वो चीज़ नहीं. दिस इज़ अ pouch of Douglas, राइट? अच्छा जी, तो कहा यह जाता है दैट दीज फोल्ड्स, दीज पाउचेज आर द रीजन्स जहाँ पर कोई भी फ्लूइड, कोई भी ड्रेनेज एक्यूमुलेट कर सकता है. लाइक जो हमारे पास होता है दिस फोल्ड पाउच ऑफ डगलस, ये इन द लाइंग इन द सुपिन पोजीशन या सॉरी इन द अपराइट पोजीशन, ये एक बहुत ही डिपेंडेंट पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी का. लाइक इसमें ना जो भी फ्लूइड हमारे पास ड्रेन होगा कहीं से भी, वो इसी में आके एक्यूमुलेट कर जाएगा. जितने होते हैं ना पाउचेज, हमेशा एज अ डिपेंडेंट पार्ट या एज दैट पार्ट एक्ट करते हैं. जबकि कोई भी फ्लूइड या कोई भी अगर हमारे पास ड्रेनेज है तो यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती है. सो इन अ लाइंग पोजीशन या इन द सुपिन पोजीशन वी हैड द प्रीवियस पाउच, द पाउच ऑफ डगलस, द पाउच ऑफ मॉरिसन्स पाउच, वो एक डिपेंडेंट पार्ट एक्ट करता है. जबकि इन द अपराइट पोजीशन या इन स्टैंडिंग पोजीशन दिस पाउच, दिस रेक्टो-यूट्रिन पाउच एज अ डिपेंडेंट पार्ट एक्ट करता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. अबाउट अ बिट ऑफ पेट, ये तो पेल्विक कैविटी बन जाती है, ये एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट नहीं है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिपेंडेंट पार्ट या डिपेंडेंट पाउच ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, वो कौन सा होगा? वो होगा मॉरिसन्स पाउच, और वो हमारे पास लाइंग पोजीशन में या सुपिन पोजीशन में डिपेंडेंट पार्ट होगा एब्डोमिनल कैविटी का. और अगर हम बात करें इन द पेल्विक कैविटी कौन सा डिपेंडेंट पार्ट है जो कि अपराइट पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में एक एज अ डिपेंडेंट पार्ट एक्ट करता है, दैट विल बी द हमारा पास रेक्टो-यूट्रिन पाउच या फिर पाउच ऑफ डगलस. सो हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना. हेपेटोरेनियल
pouch and the pouch of Douglas or the rectouterine pouch. So these were the two pouches. हमने इनकी बाउंड्रीज देख ली हैं एंड एज यू कैन सी दैट दिस मीन्स कि ये डिपेंडेंट पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी का कौन सा है, पेट्रोरेनल पाउच या मॉर्सन्स पाउच, और हमारे पास पेल्विक कैविटी का कौन सा डिपेंडेंट पार्ट है, दैट इज अ रेक्टोयूट्राइन पाउच, और ये होता है इन द सुपिन पोजीशन, लाइंग पोजीशन, और ये इन द प्राइट स्टैंडिंग पोजीशन में डिपेंडेंट पार्ट एक्ट करता है. कोई भी कम्युलेशन होगी तो यहीं पर आके कम्युलेट कर जाएगी. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टू पाउचेस, अ पाउच ऑफ डगलस एंड द मॉरिसन्स पाउच. सो थैंक यू सो मच.